بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے میرے مالک میرے محدود علم میں اضافہ فرما۔ میں پروفیسر محمد کاشف، آپ کا سوشیولوجی کا استاد، سوشیولوجی کے ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، اور جو موضوع آج ہماری اس بحث کا، اس ایکڈیمک سیشن کا حصہ رہے گا، وہ موضوع ہمارے پچھلے سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے چند لیکچرز میں بات کی تھی کلیکٹیو بیہیویئر پر، اور کلیکٹیو بیہیویئر کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it refers to a group behavior that when two or more people work together, when they perform some sort of group action, and when they act accumulatively, that accumulation or the group activity is called the collective behavior, and usually it is sudden and spontaneous in nature, and people act in a group way. So this group activity is called collective behavior. اور اس میں ہم نے کلیکٹیو بیہیویئر کے بنیادی مفہوم کو پڑھنے کے بعد ہم نے کلیکٹیو بیہیویئر کی ڈفرینٹ ٹائپس، ڈفرینٹ فارمز یا ڈفرینٹ کائنڈس کو پڑھنا شروع کیا، اور اس میں ہم کراؤڈ بیہیویئر اور میس بیہیویئر کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے پبلک اور پبلک اوپینین کا بھی جائزہ لیا۔ آج ہم کلیکٹیو بیہیویئر یعنی گروپ بیہیویئر کی تیسری بنیادی قسم، تیسری بنیادی شکل سوشل موومنٹس پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم سوشل موومنٹس کا بیسک انٹروڈکشن، سوشل موومنٹس کی مختلف ماہرین کی جانب سے دی گئی ڈیفینیشنز اور اس کے سیلینٹ فیچرز پر ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوشل موومنٹس کے بیسک انٹروڈکشن کی۔ ایک چیز واضح ہے کہ سوشل موومنٹ از آلسو a form of collective behavior. It means there are many people involved in this kind of activity, and a group activity is going to be play in social movement. Social movement generally is called when collective effort prolonged for the achievement of common goal in an organized way. Before this, we have studied the crowd behavior or the mass behavior. These kind of behaviors are also called the collective efforts, but there is no target and there is no organization in that kind of behaviors. But
in social movements, especially in social movements, there is a collective performance, there is a collective efforts that is long term or prolonged just for the achievement of some sort of goals and targets in an organized way. It means that people in social movements struggle collectively, continuously and in organized way. आसान अल्फाज में सुनिए कि माशरती तहरीक या माशरती तहरीक से मुराद बहुत सारे अफराद का मिलजुल कर तवील अरसे के लिए किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश करना माशरती तहरीक या सोशल मूवमेंट कहलाता है। एंड कलेक्टिव बिहेवियर इज शॉर्ट लाइव्ड एंड रिलेटिवली अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कलेक्टिव बिहेवियर या इज्तिमाई किरदार जो हमने पढ़ा उसमें जो क्राउड बिहेवियर है या मैस बिहेवियर है वो आम तौर पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर होता है। कुछ क्राउड कुछ लम्हों के लिए होते हैं, कुछ क्राउड कुछ घंटों के लिए होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड गैर मुनज़्ज़म होते हैं। जबकि सोशल मूवमेंट्स को ये कमाल हासिल है कि सोशल मूवमेंट्स लॉन्गर लास्टिंग यानी तवील होती हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होती हैं, हैविंग सम स्पेसिफिक गोल्स एंड पर्पसेस और उन तहरीक के कुछ मकासद होते हैं और कलेक्टिव में वो अफराद मिलजुल कर या तो कोई तब्दीली ला रहे होते हैं या किसी तब्दीली को रोक रहे होते हैं। तो वो समाजी तहरीक जो तब्दीली लाने या तब्दीली रोकने के लिए तवील अरसा तक मुनज़्ज़म अंदाज में चलती रहें और उनका बुनियादी मकसद किसी ख़ास टारगेट को अचीव करना हो, ऐसी कलेक्टिव एफर्ट को हम सोशल मूवमेंट्स का नाम देते हैं। ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, मुख्तलिफ माहिरीन की आरा देखते हैं कि डिफरेंट सोशल थिंकर्स सोशल मूवमेंट्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है गोल्डबर्ग का। अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, अ सोशल मूवमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी सोशल मूवमेंट्स या माशरती तहरीक में जो भी अफराद शामिल होंगे वो मुनज़्ज़म होंगे, दैट एक्ट्स कॉन्शियसली जो पूरे होशो हवास के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज तब्दीली लाने या तब्दीली रोकने के लिए, थ्रू कलेक्टिव एक्शन मिलजुल। आसान अल्फाज में सुनिए कि गोल्डबर्ग सोशल मूवमेंट्स को डिफाइन करते हुए क्या लिखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स अफराद का एक ऐसा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो पूरे होशो हवास में तब्दीली लाने या तब्दीली रोकने के लिए मिलजुल कर काम करे। ऐसे मुनज़्ज़म अफराद के ग्रोह को और ऐसी तवील जिद्दोजहद और एफर्ट को हम सोशल मूवमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हॉर्टन हंट क्या लिखते हैं कि a social movement is a collective effort to promote or resist change, कि माशरती तहरीक दर हकीकत माशरती तब्दीली लाने या माशरती तब्दीली को रोकने का एक मुनज़्ज़म ज़रिया है, एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद है। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो माशरती तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन ने पेश की। अब हम सोशल मूवमेंट्स या माशरती तहरीक की कुछ सेलिएंट फीचर्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। M.S.A. राव, आप एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। आपने अपनी किताब सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में ये डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स की खसूसियात का तज़किरा किया है, जिन्हें मैं यहाँ आपके लिए पेश करना चाहूँगा। आपके मुताबिक सोशल मूवमेंट्स की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं
जिनमें सबसे पहली खसूसियत कलेक्टिव एक्शन है कि सोशल मूवमेंट इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होता, ये ग्रुप बिहेवियर होता है, कलेक्टिव एक्शन होता है और बहुत सारे अफराद मिलजुल कर वो कलेक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका टारगेट सेम होता है। नंबर 2, ओरिएंटेड टुवर्ड सोशल चेंज, यानी सोशल मूवमेंट का जो बेसिक टारगेट होता है वो माशरती तब्दीली रोकना या माशरती तब्दीली लाना। यानी सोशल मूवमेंट स्कैटर्ड नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, बल्कि सबसे पहले कोई गोल, कोई टारगेट, कोई अचीवमेंट डिफाइन की जाती है और फिर उसके बाद मिलजुल कर बहुत सारे अफराद वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, आइडियालॉजी बिहाइंड द मूवमेंट, कि एक नज़रिया होता है। हमेशा सोशल मूवमेंट्स के पीछे एक नज़रिया होता है और वो नज़रिया लोगों को इकट्ठा भी करता है, लोगों को स्ट्रगल के लिए तैयार भी करता है और लोग तवील अरसा तक उसके साथ एफर्ट भी करते हैं। उसके बाद नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। यस, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बिहाइंड द सोशल मूवमेंट, कि इसमें हायरार्की मौजूद होती है, टॉप टू बॉटम स्टेटसेस डिफाइन किए जाते हैं और एक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट का लीडर होता है, बाकी उसको फॉलोअर होते हैं, कुछ थिंक टैंक्स होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में वो तमाम एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और नंबर 5, द टेक्निक्स एंड द रिजल्ट्स, कि लोग टेक्निक्स से भी बाखबर होते हैं और रिजल्ट्स भी जानते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स रही सोशल मूवमेंट्स की और ये हर सोशल मूवमेंट में इस तरह के फीचर्स मौजूद होते हैं और इन्हीं फीचर्स को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ माशरती तहरीक चलाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा मौजू है इसमें लीडरशिप। हर सोशल मूवमेंट में लीडरशिप होती है, लेकिन लीडरशिप में दो चीज़ें आती हैं, एक लीडर क्या है, दूसरा लीडरशिप किसे कहते हैं। ये आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हु इज़ लीडर। लीडर या आम अल्फाज में अगर हम कहें तो रहनुमा, कायद। अब वो कौन होगा? लीडर इज़ अ पर्सन, यानी लीडर जो है वो एक फ़र्द हो, कोई मशीन, कोई रोबोट लीडर नहीं हो सकता। लीडर इज़ अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप, यानी लीडर एक फर्द होगा जो एक ग्रुप को की रहनुमाई कर रहा होगा। ऐसा फर्द जो ग्रुप की रहनुमाई कर रहा हो उसे हम नाम देते हैं लीडर का। मज़ीद सुनिए कि अ लीडर इज़ अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी लीडर एक फर्द होगा जो लोगों को मुतासिर करेगा और एक ख़ास मकसद के हसूल के लिए उनको आगे लेकर चलेगा। ऐसे फर्द को लीडर या रहनुमा कहते हैं। अ पर्सन हु रूल्स, हु गाइड्स और इंस्पायर्स अदर्स इज नेम्ड एज लीडर, यानी ऐसा फर्द जो लोगों पर हुक्मरानी करे, ऐसा फर्द जो लोगों की रहनुमाई करे, ऐसा फर्द जो अपने कौल व फ़ेल से दूसरों को मुतासिर करे, ऐसे शख्स को हम लीडर कहते हैं। यानी वो फर्द जो हमारी रहनुमाई कर रहा हो, वो फर्द जो हमें रास्ता दिखा रहा हो, वो फर्द जो हमारी मंजिल का तयन कर रहा हो, वो फर्द जो हमें मंजिल तक पहुंचने के रास्ते की रहनुमाई कर रहा हो और हमारे आगे आगे चल रहा हो, ऐसे फर्द को हम लीडर कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? लीडर तो एक पर्सन है जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइड करता है, जो हमें इंस्पायर करता है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली उसी फर्द की वो एबिलिटी है। It refers to the ability of an individual to lead or guide others. यानी वो फर्द
जो दूसरों को लीड करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी या क्वालिफिकेशन रखता हो, ऐसे फर्द की उस एबिलिटी, कैपेबिलिटी को हम नाम देते हैं लीडरशिप का। लीडर एक फर्द वाहिद, और लीडरशिप उस फर्द के अंदर दूसरों को गाइड करने की वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसा फर्द जो इस तरह की खसूसियत रखता होगा, वो उसकी वो सलाहियत, वो खसूसियत लीडरशिप कहलाती है। ठीक है, अच्छा, व्हाट डू अ लीडर डू? अब क्वेश्चन ये है कि एक लीडर ने करना क्या होता है, या एक लीडर, इफेक्टिव लीडर कैसे हो सकता है, या किसी फर्द को हम लीडर क्यों मानेंगे? नंबर 1, लीडर इज अ पर्सन who creates an inspiring vision of the future and sets the goal. लीडर वही होगा, एक इफेक्टिव लीडर वही होगा, एक फर्द को लीडर हम तब मानेंगे जिसकी नज़र मुस्तकबिल पर हो, जो मुस्तकबिल के टारगेट्स रखता होगा, जो मुस्तकबिल में हमें लीड कर सकता होगा, जिसकी मुस्तकबिल पर पैनी नज़र होगी, जो मुस्तकबिल के उतार और चढ़ाव पर नज़र रखता होगा, वो फर्द लीडर हो सकता है, वो फर्द एक इफेक्टिव लीडरशिप परफॉर्म कर सकता है। नंबर 2, लीडर इज अ पर्सन हु मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स पीपल टू गेट द गोल्स। यानी लीडर वो होगा जो दूसरों को मोटिवेट करेगा, जो अपने कॉल फेल से दूसरों को इंस्पायर करते हुए, उनको फ्यूचर ओरिएंटेशन देते हुए, फ्यूचर टारगेट्स के हसूल के लिए एक जिद्दोजहद और कोशिश में लगा देगा। वो फर्द जो मोटिवेट कर सकता हो, वो लीडर हो सकता है। नंबर 3, लीडर इज अ पर्सन हु मैनेजेस डिलीवरी ऑफ द विजन। क्या आपने एक गोल, एक टारगेट, एक विजन दे दिया, अब उस टारगेट, उस गोल, उस विजन को हासिल करने के लिए लीडर ने अपने फॉलोअर्स को मैनेज करना होता है, उनको उस सिमत पर चलाना होता है। ठीक है, तो वो फर्द जो ये सारी चीजें मैनेज कर सकता हो, वो लीडर कहलाएगा, वो एक इफेक्टिव लीडर हो। एंड नंबर 4, लीडर इज अ पर्सन हु कोचेस एंड बिल्ड अ टीम। यानी सोशल मूवमेंट कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी, कोई इंडिविजुअल टास्क या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, इट्स अ ग्रुप एफर्ट। और आमतौर पर सोशल मूवमेंट्स तवील होती हैं और इसमें अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए एक टीम बनानी पड़ती है, और फिर लीडर को उस टीम की कोचिंग करनी पड़ती है ताकि इफेक्टिव अंदाज में टारगेट को, विजन को या गोल को अचीव किया जा सके। तो वो फर्द जो एक टीम बिल्ड कर सकता हो, वो फर्द जो उस टीम को बिल्ड करने के बाद उसकी कोचिंग कर सकता हो, उसकी रहनुमाई कर सकता हो, ऐसा फर्द लीडर हो सकता है, और ऐसा फर्द ही इफेक्टिव लीडर तस्वर होगा। एंड नंबर 5, मेक डिसीजंस एंड लीड द अदर्स। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि सोशल मूवमेंट्स के दौरान, समाजी तहरीक के दौरान, बाज़-औक़ात हम मंजिल मकसूद को नहीं पहुंचे होते और दरमियान में हमें कुछ फैसले, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिस जो उस टीम के लिए, उस तहरीक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लीडर, एक अच्छा लीडर वही होगा जो इस तरह के दरमियान में फैसले, हालात और वाक़यात की नौयत को समझकर ले सकता। ठीक है, क्योंकि लीडर हठधर्म नहीं होता बल्कि फ्लेक्सिबल होता है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही उसे लीडर बनाती है। तो
اس بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی کریٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اپنے اینڈ ٹارگٹس کو چھوڑ کر درمیان میں آپ کو کچھ فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. تو لیڈر کو ڈیسیژنز لینا آتا ہو، اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ پار موجود ہو، اور ایٹ دا اینڈ a leader, a great leader focus on results. Yes, چاہے جتنے بھی ڈیسیژنز درمیان میں لے، یو ٹرنز لے، لیکن اس کا جو پرائم فوکس ہے وہ اس کے ایکچوئل ٹارگٹ پر ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے ایکچوئل ٹارگٹ پر فکس رہتا ہے اور دائیں بائیں زگ زیگ کر کے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچیو کر جاتا ہے، تو صرف وہی فرد ہی لیڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیڈر ایک اسکلفل پرسن کا نام ہے، ایک ایسا اسکلفل پرسن جو بہت سارے لوگوں کی اسکلز کو اکٹھا کرے. لیڈر وہ فرد ہے جس میں یہ ایبلٹی موجود ہو کہ وہ دوسروں کی پوشیدہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کو جگا بھی سکتا اور ان کو استعمال بھی کر سکتا. تو ایسے فرد کو ہم لیڈر مانیں گے، اور ایسا فرد ایک انسپائرنگ لیڈر ہو سکتا ہے. تو آج کا ہمارا موضوع یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے.